So I'll share my screen. And I want to look at the book, textbook, which you have TPS. And if you don't have, for this lecture, you can use this as a reference. But Yes, sir. I want you to purchase the TPS book if you do not have. So I bought. There are two separate books, I think. One and Correct. two. CS1 and CS2. So keep that CS1 book with you right now, Yes. and also open the page number called 4 point something, हम लोग browse करते हैं. We will understand from this. So let's say 4.4. Yeah. Before that, all the concept I want you to understand later on. I don't want you to understand by theory कि what are the advantages, what are the disadvantages. वो सब बाद में करेंगे. सीधा पहले focus on what is HTML, how can I run the program. So you can visualize. If I'll say anything, you can visualize. अच्छा हाँ उस दिन हमने बनाया था वैसा. Okay, so that I want. ठीक है. So both of you can see my screen also, right? Yes. Yes, Yeah. sir. So let's understand. Basically, this is a programming language called HTML, and I am sure that you know the full form of that. Let's shout. Hitanshu, क्या है full form? Sir, hypertext transfer, something like that. नहीं, something like नहीं, exact बोलो. HT hypertext बराबर बोला, फिर ML का बोलो. Language है एक. Language है M for Ethan. Mark? No. Markup. Yeah, markup language. So hypertext markup language is one of the programming language allow me to create dash. क्या कर सकते हो आप इथेन? Websites? Very good. You can create the websites. So with help of HTML, I can create the web page. I created my first page. I created a second page. I created the 11 pages. Clubbed it together, make it in a one basket, और वो बन गया मेरा website. That's called HTML का usage. Very clear. कोई भी website हम HTML में बना सकते हैं. But there are certain limitations that these things you cannot do in HTML, that thing you cannot do in HTML. So that is what the every programming has some limitations, right? तो we will learn what exactly HTML is, कैसे बनाते हैं HTML का एक वेब पेज, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, right? So I'll open my whiteboard. So if I'll go here and just forget about the rest of the things. So I said HTML requires two software. मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ तो एकदम बड़ा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है. सिंपल. एक होता है नोटपैड. रोल ऑफ द नोटपैड इज लाइक एडिटर. आई एम गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम इन दिस. I am going to write the program in this editor, and I required one browser, right? So when I say browser, what comes in your mind, Ethan? Google? गूगल नहीं, गूगल तो कंपनी का नाम है. Internet? No. Which browser name you know? करेक्ट जा रहे थे. गूगल व्हाट? Google Chrome, sir. क्रोम, है ना? And Yes. another one, This is Internet Explorer. IE, very popular name is called Internet Explorer. The Microsoft Edge. Correct. This is the another one came. Firefox? Very My good. Firefox. And many more, right? Then you have Opera, then you have UC browser,
Yes, sir. ऑल सबका वही इंटेंशन है, राइट? सो एंड देन इतना सारा है, तो यहाँ मुझे कुछ और बताओगे, व्हाट एल्स यू कैन डू इट इन नोटपैड को छोड़ के, और क्या हो सकता है? देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एडिट प्लस, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ड्रीम वीवर, another software where you can make HTML file. Okay, कहीं पे भी आप लिख सकते हो. Okay, so this is what you can do. So this itself is a notepad, जहाँ पे हम लोग अभी ये सब learn कर रहे हैं. This itself is a notepad. So exactly HTML का प्रोग्राम कैसा होता है? So I should know the structure of this program. The first and the foremost question comes in the board exam is your structure, basic structure of your web page. So मैं एंगल ब्रैकेट को टैग बोलता हूं, TAG टैग. So when I say every page begins with HTML tag, तो आपको समझना है HTML, ये HTML है और उसका कंपेनियन ये रहा, तो टैग बोलेंगे उसको. तो यहाँ पे देखो कुछ दिया है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ HTML. तो यहाँ लिखा है कि एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज सम जनरल स्ट्रक्चर. The primary part of the HTML document is denoted by HTML head and body tags. Tag बोलते हैं हम लोग. HTML is always starts with the open HTML tag. Similarly and with the close HTML tag. तो एक तो ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया. हेड ओपन हो गया, हेड क्लोज हो गया. बॉडी ओपन हो गया, बॉडी क्लोज हो गया. राइट? सो इट विल बी ऑलवेज इन अ पेयर. इट विल बी ऑलवेज इन अ पेयर. ये देखो. So if I am writing, I will create, मैं run में जाऊंगा और लिखूंगा notepad. This is the shortcut to open the notepad. अभी जैसे हमने बताया HTML open, तो मैं क्या करूंगा, इसको हमेशा कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा एंड क्लोजिंग बना दूंगा, HTML क्लोज. ना उधर कैपिटल में लिखा है, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, चलेगा क्या इथेन? एनी आइडिया? Yes, sir. Yeah, चलेगा. Why? Because HTML is not a case sensitive programming language. Sir, Ishan is in the waiting room. Oh, how come prompt नहीं आया? अच्छा आया. Yeah, thank you. So HTML is not a case sensitive programming language. What does that mean? Welcome, Sean. Are you there? Rishon. Rishon, can you hear me? चलो ठीक है, let him settled. So it's not a programming language which is a case sensitive. मैं upper case में लिखूं, lower case में लिखूं, absolutely fine. I got that, Rishon, no problem. ठीक है. You need any support, मुझे बताना last में. So it is not a case sensitive language. तो मैंने ये open close किया. Now the moment I said HTML open close, हम लोग C++ में कैसा curly bracket open close करने का, वैसा है ये. Now HTML has got head. तो मेरे को ये HTML का जो प्रोग्रामिंग है ना, वो ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसके साथ काफी रिसेंबलिंग लगता है. यू नो, हेड, ह्यूमन को एक ही हेड होता है एक्सेप्ट रावण को मल्टीपल था, वी हैव वन ओनली, राइट? तो यहाँ HTML में भी एक ही हेड होता है. देन हेड के अंदर I can have a title.
तो वापिस में कॉपी पेस्ट कर लेगा। आई गॉट टाइटल, सो ये रहा टाइटल, और टाइटल के बीच में मैंने लिख दिया Hello, sir. So now you can hear me, sir. या वेलकम। सो आई थॉट कि ये वापिस आया, अरे ये अचिंत्य नहीं आया, तो मुझे लगा वो आया है। आई गॉट दैट, चलो गुड। सो वी विल ऑल्सो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो नाउ हेड है, टाइटल है, एंड आई एम राइटिंग दिस इज माई पेज टाइटल। सो ये आउटपुट किधर आएगा? दिस इज पेज टाइटल, वेयर इट विल कम? एनी आइडिया? Google Chrome. हाँ, क्रोम में किधर आएगा लेकिन एग्जैक्टली? The place where we search it. हाँ, New website. ओके, न्यू वेबसाइट विल कम, बट उसमें पेज के सेंटर में आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, टॉप में आएगा? Top Top heading left. में आएगा. हाँ, या हितांशु? Sir, top heading में आएगा. टॉप हेडिंग में आएगा। यस इथान? So top left. हाँ, ये देखो ऊपर, कैन यू सी हियर html.pdf दिख रहा है? Yes, sir. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेड। यहाँ पे जो अनटाइटल दिख रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेड, ऐसा समझो। मैं अभी ये क्रोम ओपन करता हूं तो क्रोम में सामने लिखा है मीट प्रोफेसर प्रज्ञेश 12th CS1, दैट्स नथिंग बट द हेड। ये व्हाट्सएप लिखा है, इट्स अ हेड एवरीवन। तो अपना वेबसाइट में यहाँ क्या लिख के आएगा? दिस इज This page title. पेज टाइटल। एब्सोल्युटली राइट। ये टाइटल हो गया। टाइटल Sir, एक ही होता या? sir, WhatsApp web is created using HTML. No, it's a server side programming language, but I am saying that कि ये head है actually। That I understood. हाँ, otherwise ये तो WhatsApp तो server side programming है। It required server, so either PHP, It's like web portal. हाँ Like web portal. हाँ, it's a web portal, but it required server also। Client side का है ये, हमारा HTML is only client side, it doesn't have a server। तो यू कैन नॉट हैव लॉगिन वगैरह नहीं हो सकता HTML में। अचिंत्य का फोन है। हाँ अचिंत्य, हाँ लैपटॉप से करो ना, हाँ मोबाइल से करो, करो करो। ओके ठीक है। सो या सो वी आर सेइंग कि वी व्हाट्सएप किस पे है, तो इट्स सर्वर साइड जहां पे मैं चैट कर सकता हूँ। सो आई रिक्वायर्ड आइदर ASP दैट इज कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस, और JSP कॉल्ड जावा सर्वर पेजेस, और PHP ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बनाया होगा। ठीक है, ये हेड हो गया, टाइटल हो गया। अभी हेड के नीचे क्या होता है, तो यू नो दैट there is a body comes into the picture, so I have a body tag open and body tag close। तो ये स्ट्रक्चर में देख रहा हूं, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। इनसाइड दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले विल कम। बॉडी टैग के अंदर नाउ यू कैन हैव अ मेनी मोर टैग्स, और टैग नहीं चाहिए, सॉरी Body start होने के पहले head end होगा ना. हाँ हेड एंड होगा बिल्कुल। तो हेड नहीं किया ना एंड, यस आई हैव टू एंड द हेड, राइट? तो वो नीचे लिखा है HTML end के पे. यस, यहाँ पे लिख दिया, उसको शिफ्ट करना है ऊपर। नाउ बॉडी टैग ओपन क्लोज के बीच में मैं कुछ लिखता हूं कि भाई दिस इज बॉडी टैग, एनीथिंग, तो ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा।
Now I want you to everyone to execute this first of all so that understand हो कि exactly है क्या. Okay, exactly है क्या HTML. So मैं 12th CS के अंदर let's say 2021 हाँ हाँ बोलो. यार प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आता. हाँ ठीक है. आज प्रॉम्प्ट का आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? मैंने कुछ म्यूट व्यूट तो किया नहीं. So I'll save it. 12 CS के अंदर I'll create a new folder 2021 any folder, and then I'll say first.html. You have a two choice everyone. Either you say .htm or you say HTML. Both works. Absolutely works. लेकिन खाली फर्स्ट लिखा तो क्या होगा? It will open Notepad. इनफैक्ट उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज .txt. देखो नीचे लिखा ही है, तो इट्स स्टोर्ड एज अ फर्स्ट .txt, and in that case you will not get the output. So the most important is that you must save as .html or htm. This is critical. मैंने सेव किया, तो ये मेरा फाइल हो गया और उसमें मैंने सेव किया. ओके अभी मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 12 CS के अंदर 2021 के अंदर आई हैव अ first.html. देखो आइकन आ गया बाय डिफॉल्ट क्रोम का, क्योंकि मेरे सिस्टम में क्रोम इज द डिफॉल्ट ब्राउजर. जिसके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा इट विल कम एज एन इंटरनेट एक्सप्लोरर. किसी में यूसी ब्राउजर होगा, किसी में आपका ओपेरा होगा, किसी में और. दैट्स फाइन, बट मैं ओपन कैसे करूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ लुक एट एवरीवन. मैंने एक प्रोग्राम लिखा. दिस इज वन प्रोग्राम. मैं इसको इसके साथ यूज करता हूं, and then I'll save as first.html. Since HTML doesn't support compiler, इसमें कोई भी एरर है तो आपको एरर देने वाला नहीं है. Yes, sir. Then what happens? I won't get the output the way I want, and as my output didn't turn up as per my expectations, that means there is an error in my program. उल्टा है यहाँ पे. आउटपुट नहीं आया मतलब प्रोग्राम में एरर है. So this is the beginning level का programming language which does not have a compiler even today. Okay. So we have to check. तो अभी मैं चेक करता हूँ. चेक कैसे करूँ? I have a two choice. Everyone please look at. I have a two choice. Choice number 1. Go to the browser का path जहाँ पे आपने सेव किया था. तो मैं वो ब्राउजर का पाथ ओपन कर रहा हूँ. कहाँ पे मैंने सेव किया था, मतलब माई कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव में. आई हैव अ लॉकडाउन फोल्डर, आई हैव अ 12 CS फोल्डर, आई हैव अ 2021 फोल्डर, एंड इसको मैं ओपन करूंगा. दिस इज द वन वे. लुक एट दैट. क्या आता है देखते हैं जरा. आ गया. अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा आया. दिस इज अ पेज टाइटल. इट्स अ केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव इधर क्यों आया वो देख लेते हैं हम लोग. सर वो क्योंकि हमने टाइटल में कॉपी कर दिया था उसको ऐसा है. एंड नॉट इन बॉडी. ओह लेट्स चेक. हाँ I wanted, actually it's supposed to be as a part of my body, and then मैं अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए? रिफ्रेश. ये रिफ्रेश. देखो यहाँ पे दिस इज अ पेज टाइटल आ गया, and this is the body tag. HTML is not a case sensitive programming language आ गया. It's a small font. मुझे बड़ा करना है. We will learn one by one.
होल्ड ऑन, यहाँ क्या प्रॉब्लम होगा? स्टूडेंट में learn, you people are right now attending my lecture online through Google Chrome और उसमें ये आउटपुट आया और then you close the Google Chrome. What happens? आपका मीटिंग भी क्लोज हो गया. Yes. So you have to be very careful. You have to close the tag only. खाली ये टैग हो, टैग नहीं बोल रहा हूँ अभी मैं, टैब बोलने का, इसको टैब बोलते हैं. ये मेरा मीट का, ये मेरा व्हाट्सएप और ये मेरा वेबसाइट का टैब को क्लोज करना था खाली. दैट्स इट. दिस इज द वन वे टू ओपन. डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके डबल क्लिक करो. अनदर वे इज आई कैन ओपन एनी ब्राउजर. लेट्स अज्यूम दैट मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, ठीक है. सो एज माई कनेक्टेड विथ इंटरनेट, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, न्यूज का पेज ओपन कर लेगा माइक्रोसॉफ्ट. इंटरनेट एक्सप्लोरर पे फर्स्ट पेज पे MSN इंडिया का सारा आ जाएगा और आज का न्यूज फ्लैश हो जाएगा. तालिबान अफगानिस्तान होगा कुछ, मे बी ओलंपिक्स का रिलेटेड कुछ होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया हो सकता है. ये देखो स्विच करने को बोल रहा है एडवर्टाइज, एंड एज यू एंड मी आर एक्सपेक्टेड, अफगानिस्तान तालिबान का आ गया. ये क्लोज नहीं करने दे रहा है मुझे, कैसा है रे? सर कंपलसरी है लगता है. हम लोग भी उसमें ऐसे है ना कि करेंगे नहीं. ये देख मैं इधर जा रहा हूँ, हाँ हो रहा है, चल यहाँ पे हो गया. नाउ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली आई वांट फाइल ओपन एंड वगैरह, तो मुझे फाइल टैग तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे. फाइल है ना, ये चला गया अपने आप. सो फाइल दिख नहीं रहा है. अभी क्या करूं मैं? तो फाइल करने के लिए ऑल्ट F करूंगा ना तो दिखेगा फाइल. ये देखो आया. Yes, sir. एंड आई हैव ओपन एवरीवन. तो उसका शॉर्टकट देखना. कंट्रोल O. हाँ, कंट्रोल O. आया. व्हाट डू यू वांट टू ओपन? आई सेड ब्राउज. First.html. ब्राउज में जाके किधर, तो अपना लोकेशन देखना पड़ेगा ना. सो आई हैव टू गो टू ई ड्राइव, लॉकडाउन 12 CS 2021 first.html. चाहे वो दिखाता है क्रोम का आइकॉन, डज नॉट मीन कि मुझे क्रोम में ही ओपन करना है. आई कैन ओपन इन एनी ब्राउजर. ये अभी ऑफलाइन आ गया, ऑनलाइन चला गया. दिस इज अ पेज टाइटल. आई होप यू कैन सी. दिस इज अ Yes, sir. बॉडी टैग. HTML is not a case sensitive language. सो एक छोटा सा टैग मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इसके अंदर. तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे, लेकिन वो एक ही लाइन में आया. बिकॉज HTML नेवर अंडरस्टैंड्स कि आपको अलग अलग लाइन चाहिए. फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज अ वन टैग. हेलो. एंड देयर इज अ टैग कॉल्ड BR, ब्रेक. एवरीवन, ब्रेक क्या करेगा? लाइन को ब्रेक करेगा. दैट मीन्स दिस इज बॉडी टैग के बाद देयर इज अ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में HTML टैग आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. उसको आप रिलेट कर सकते हो C++ का एंडल, ENDL Yes, sir. Yes, sir. है ना. यहाँ पे ब्रेक आएगा. लेकिन हितांशु आप हो ना यहाँ पे? Yes, sir. एंड हाउ अबाउट दिस अचिंत्य? Yes, sir. तो आपका बैकग्राउंड ऑफ रिलेटेडनेस में क्रिएट करता हूँ. आप वापिस ऐसा एकदम टेंशन में नहीं, सर मैं लेट आया समझाओ. वापिस कुछ नहीं किया मैंने. आई हैव क्रिएटेड अ वन फाइल जहां पे HTML को ओपन किया एंड वही HTML क्लोज किया. कैन यू सी हियर क्लोजिंग है. Yes, sir. तो क्लोजिंग कैसे समझता है? तो क्लोजिंग इज बिकॉज ऑफ दिस स्लैश. और ये कौन सा स्लैश है? इसको मैं बोलता हूं फॉरवर्ड स्लैश. ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है. फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है. और मैं जब भी मेरा टैग लिखूंगा ना, तो मेरे को ऐसा हैबिट है, जैसे मैं लिखता हूं TD ओपन और TD क्लोज. मेरे को ऐसा हैबिट ही है, मैं ऐसा ही लिखता हूँ. CD क्या है? नहीं, डोंट गो इन दैट. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. Okay. ओपन क्लोज ऐसे लिखने का हैबिट बनाओ. लेकिन यू सेड सर BR में तो आपने नहीं लिखा. तो BR एक ऐसा टैग है जो बैचलर है, अनमैरिड है. ये सब पेयर में है, मैरिड है. HTML ओपन, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है उसकी.
कंसिडर BR इज अ बैचलर, ओके, और बैचलर टैग को कोई कंपेनियन नहीं होता, इज अ फ्री बर्ड, ऐसा हो गया। और इस टैग को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं इसको, सेल्फ क्लोजिंग। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं आपने सेल्फ क्लोजिंग किया नहीं किया डजंट मैटर, चलता है। मैंने खाली एक चेंज किया, देन आई हैव टू सेव माय वर्क, देन आई हैव टू गो टू अगेन द ब्राउजर एंड आई शुड नॉट ओपन इट अगेन ऑल टुगेदर। मुझे रिफ्रेश करना है खाली, यहाँ से रिफ्रेश, और उसका शॉर्टकट है F5, और कोई लैपटॉप में फंक्शन F5 होगा। हो गया, देखो नेक्स्ट लाइन में। बहुत छोटा है, एंड वन ऑफ यू आर सेइंग यार इतना छोटा है कैसे पढ़े, तो मैं उसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। आया वो हेडर टैग, हेडर H2 ओपन, H2 क्लोज, and I got H3 open, I got H3 close. सर या एक डाउट था, हाँ बोलो ना। आपने H2 यूज किया, H1 क्यों नहीं यूज किया? लिख सकते हैं ना H1 भी, देर आर 6 टैग्स अवेलेबल, H1 से लेके H6, ओके सर, एनी टैग, एब्सोल्युटली एनी टैग। दिस इज ट्रायल एंड एरर डिस्कवरी, अलग अलग देखो। कैन यू सी द डिफरेंस, H2 एंड H3 थोड़ा छोटा है H3, Yes, sir. हाँ सर, है ना। सो दिस इज H2, थोड़ा रीडेबल है। एंड एज आचिंत्य सेड कि सर H1 कैसा होगा, तो लेट्स सी H1, ये H3 को मैं 1 बनाता हूँ। उससे बड़ा होगा ना? हाँ बड़ा H2 होगा, से बड़ा होगा ना? यस। सेव किया, रिफ्रेश करो, देखो अभी 2 छोटा लगता है। हाँ सो वेरी क्विक रिकैप, लुक एट द स्ट्रक्चर। मेरे को एग्जाम में ये डायग्राम एज इट इज चाहिए। HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। टाइटल लिखना इट्स ऑप्शनल एवरीवन, टाइटल Yes, sir. लिखना इज ऑप्शनल, नहीं ओके लिखोगे तो ब्लैंक रहेगा। देन आई गॉट हेड के नीचे बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और उसके अंदर के टैग हमको सीखना बाकी है, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट डू यू मीन बाय H1 2 3 4 5 6 NBR। सर हाँ सर वो जो H2 और H3 लिखा ना, हाँ, अगर स्टार्टिंग में H1 लिखा और एंड में H3 लिखा तो क्या बड़े से छोटा होता जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनाया है, काश ऐसा बनाया होता। सो यू मे डेवलप, सो दिस विल क्या करेगा, आप मुझे बोलोगे तो दिस इज अगेन अ डिस्कवरी कि सर ये अभी H3 देगा कि H1 देगा, तो वो हमको रन करके ही देखना पड़ेगा। H1 देगा ऐसा लगता है, बट देन उसका कोई भरोसा नहीं। ये देखो H1 ही दे दिया। मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं बोल सकते सर कि क्या देगा वो? या ये देखो ना, मैं एरर करता हूँ, H1 का क्लोजिंग निकाल दिया, ठीक है, यस सर, सेव किया, ये देखो गायब हो गया पूरा, दिस इज अ बॉडी टैग ही गायब हो गया, देखा। हाँ सो बिकॉज उसके पास कंपाइलर नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपाइलर नहीं है तो आपको जैसा लिखा वो उसके हिसाब से समझने का कोशिश करके आपको आउटपुट दे देगा। सिंस यू मेड अ मिस्टेक यू हैव टू रेक्टिफाई, ऐसा। चलो क्विक, मैंने रिकैप दिया, आप लोग एक बार पहले रन करके देख लो ना फटाफट, लेकिन आई इंसिस्ट कि आप लोग उसको मैंने ओपन किया वैसा ओपन मत करो, पहले एक और ब्राउजर ओपन करो। देखो ना, मैं एक और यहाँ पे रह के एक और नया ऑल्ट F करूंगा ना तो नया विंडो भी ओपन कर सकता हूं, यस और नो, कैन यू सी, कंट्रोल N, हेलो। यस Yes, sir. आप लोग ज्यादातर अभी क्रोम से ही लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं उधर न्यू विंडो कर दूंगा ना, तो मैं एटलीस्ट मैं फ्री रहूंगा। और यहाँ पे मैं
कंट्रोल ओ करूंगा तो मेरे को वो पूछेगा क्या ओपन करना है भाई। ये देखो कंट्रोल ओ में पूछा उसने क्या ओपन करना है। आई सेड आई वांट टू ओपन माय लॉकडाउन फोल्डर, इन दैट आई हैव अ 12th, इन दैट 2021, और ये मेरा फाइल को ओपन करना है। आ गया, ये देखो आ गया। एंड इफ आई क्लोज दिस विंडो एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन इधर ही ओपन मत करो। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. तो विंडो Yes, एक sir. नया ले लेना, इधर जाके ऐसा न्यू विंडो कर देना, ये 3 पे नहीं तो कंट्रोल एन कर लेना। डोंट से कंट्रोल ओ, पहले कंट्रोल एन करो और फिर उसमें ओपन करके देख लेना। ठीक है, लेट्स रन द प्रोग्राम क्विकली। आई नो इट्स अ 1 hour लेक्चर, बट मेरा 5 मिनट जाएगा, मुझे चलेगा, लेकिन ऑल स्टूडेंट विल बी सिंक्रोनाइज्ड। और मुझे नहीं लगता उसको आप टाइप करने बैठोगे, इतना ही टाइप करना है आपको, आधा, बाकी का आधा तो मिरर इमेज है। कॉपी पेस्ट, एवरीवन कॉपी पेस्ट क्विकली Yes. क्विकली। सर एनीवन इज डूइंग फ्रॉम मोबाइल? सर मैं लैपटॉप पे हूँ तो मैं कैसे करूँ इसको टाइप कहाँ करना है? नोटपैड में। इट्स अ नोटपैड। सर एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो सर 5 मिनट में चालू हो जाएगा। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इंग्लैंड की टीम के लिए गाना गा। I'll come in a minute.
सर आपने इसको फाइल नेम कहाँ सेव करने बोला है? हेलो सर, Yes, Achintya, done. आपने ये फाइल को क्या नाम से सेव करने बोला है? First.html. You can save as whatever name you want. But let us go traditional way. कुछ मीनिंगफुल नाम देना उसको. Something.html. Sir, Save done. as ओके सर, something.html. And put all the HTML files in the same folder, everyone. जहां C++ सेव किया है उधर नहीं तो एक फोल्डर अलग बना लो HTML का, उसी में सेव कर लेना. सर Yes. मेरा रन हो गया, आपको प्रेजेंट स्क्रीन करके बताओ. रन हो गया तो इट्स ग्रेट. नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. आई एम वेटिंग फॉर ऑल. सबका हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Done. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. एक बार जरा चेक करते हैं. चलो मेरे को ये दिखाने का था आप लोगों को that what exactly the structure of the HTML is. हेड हो गया, बॉडी हो गया. बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, राइट? We will do that later on. Right now just understanding the introduction part. Yes, sir. Good. जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको नहीं करना है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी एवरीवन, बिकॉज 10 इयर्स से यही सिलेबस है. सब कवर हो गया. डू नॉट वरी एट ऑल. सो if it is title, they asked for 2 marks. The title begins with the title tag and end with the title tag, which will display the title bar. ये आपने नहीं लिखा ना, पूरी स्टोरी लिखोगे कोई फायदा नहीं. इट विल डिस्प्ले इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर. उसको टाइटल बार बोलते हैं, है ना? और दिस इज यूज्ड. ये टाइटल कहाँ यूज होता है? यू नो, इट विल बी वेरी मच यूज्ड इन इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग. आपने ऐसा सुना है? डिजिटल मार्केटिंग, है ना? तो डिजिटल Yes. मार्केटिंग Yes, sir. सेज दैट आपका वेबसाइट के अंदर ये टाइटल होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट है. मेरा क्लासेस का नाम पायोनियर है, बट नो वन विल सर्च विथ पायोनियर. Of course, they will search for Pioneer when they know already that Pioneer is providing 12th computer science lectures. Otherwise, मेरा actually customer कैसे आने वाला है ऑनलाइन? अगर कोई अननोन पर्सन आएगा तो 12th कंप्यूटर साइंस कोचिंग क्लासेस ऐसा करके वो सर्च करेगा. Yes, sir. तो इट शुड बी अवेलेबल इन माय समवेयर टाइटल के अंदर एज वेल एज समवेयर इन माय हेड. मिलना चाहिए वो. उसमें दो होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड. एक सबको दिखता है, एक सबको नहीं दिखता है. तो मैंने जहां सबको नहीं दिखता है उधर रखा रहेगा. दैट इज व्हाट माय वेबसाइट डिजाइनर ने किया रहेगा. इवन आई डोंट नो, बट उन्होंने डेफिनेटली किया है. ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, वी हैव अ 15 minutes लेफ्ट. तो देन वी विल चेक और क्या क्या है इसमें. छोटा छोटा क्वेश्चंस आज कर रहे हैं हम लोग. सो मैं ऊपर जाके एक बार फर्स्ट से देख लेता हूँ. स्टडी ऑफ द टैग्स मुझे देखना था. व्हाट आर द टैग्स?
तो ये एग्जाम में पूछा नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। स्लैश आना चाहिए, मतलब मैंने बताया ना, आई टैग ओपन, आई टैग क्लोज। आई टैग लर्न नहीं कर रहे अभी हम लोग, ओपन एंड क्लोज, एंड टैग एंड स्टार्ट टैग बोलते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक भी कर सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML? डिसएडवांटेज आप बोल रहे हो क्या हो सकता है? तो डिसएडवांटेज मैंने बताया, कंपाइलर नहीं है उसके पास। So that's the reason it is not a programming language in a true sense. Any calculation you cannot do it in HTML at all. कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते आप, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी कर चुके हो, आई थिंक, कैलकुलेट द परसेंटेज, Yes, sir. दैट यू कैन नॉट हियर। अच्छा, इवन आज का डेट भी आप डिस्प्ले नहीं कर सकते HTML में। आज का डेट आपने डिस्प्ले किया, फिर कल आप ओपन करोगे तो भी आज का डेट दिखाएगा, दैट मीन्स इट इज अ स्टैटिक पेज। अगर सर्वर साइड रहेगा तो इट विल बी डायनेमिक। सर ये डायनामिक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। या यू वांट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक, राइट? यस सर। हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैंने HTML में डेट डिस्प्ले किया तो डेट के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है कि डेट करके मैं डिस्प्ले कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टूडेज डेट इज 19/08/2021 लिखा, तो वो कल मैं इसको ओपन करूंगा तो 19 ही दिखाएगा, 20 नहीं दिखाएगा। बट इन जावा, in ASP.NET, then in PHP, we have a function available called date, जो CPU का डेट को उठा के डिस्प्ले करता है, और वो भी सर्वर का CPU। ओके, वन ऑफ यू आर थिंकिंग सर मैं मेरा CPU का डेट पीछे कर लेता हूं। नहीं, आपका डेट से कोई लेना देना नहीं, इट इज पिकिंग अप फ्रॉम सर्वर, दैट इज नॉट अवेलेबल इन HTML। Okay. ओके सर। So you cannot have a dynamic, you do not have a username password facility also. Basically username password क्या facility देता है आपको? Can you tell me, Ethan? So can you repeat the question? Yeah, I am asking that if I provide username and password in my website, what makes it different? Username password से what you can basically providing to customer? The same thing. अच्छा, अगर इथेन ने लॉगिन किया और उसको भी सेम आउटपुट आया, प्रग्नेश ने भी लॉगिन किया तो सेम आउटपुट आया, तो फिर लॉगिन करने का हेडेक मैं क्यों कराऊं बाबा कस्टमर को? टेल मी। Yes. सो व्हाट विल बी डिफरेंट? आप अमेजोन में अपना अमेजोन से लॉगिन करके देखो और मैं मेरा अमेजोन में लॉगिन करके देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इथेन? Our own profiles. What about the orders? Will you able to see my order or your order? Separate order. है ना? So yours must be different than mine. Yes, sir. That means can I say it is uh, Universal. universal? नहीं, it is customized, Yes, sir. है ना? Everyone, I hope you can relate to this. यस सर। और आप लोग के घर में देखना, आप लोग के घर में अगर स्मार्ट टीवी है और अगर आप YouTube देख रहे हो तो उस YouTube में भी लॉगिन करना होता है, यू नो, स्मार्ट टीवी में। यस Yes, एंड sir. उधर आपने अपना लॉगिन किया तो आपके रिलेटेड इंटरेस्ट वाले सारे वीडियोस आएंगे, राइट? आपका sir. सर्च sir. हिस्ट्री देख के। एंड इफ योर अदर फैमिली मेंबर विल लॉग इन, या तो विदाउट लॉग इन हम ओपन करते तो कुछ और आएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। यू आर प्रोवाइडिंग अ customized, right? You are providing customized output to the customer. उसको अपनापन लगता है। मैं मेरा अमेजोन को ओपन करता हूं तो मेरे को पुरानी बुक्स दिखती है, मैंने क्या क्या परचेस किए, इवन इट इज देयर इन माय वार्डरोब, लेकिन मुझे नहीं पता, बट मुझे अमेजोन में सीधा दिखता है।
all 40-50 books which I have purchased मुझे उधर दिखता है. So that is what other programming can do, but HTML cannot. So to summarize very quickly, Hitanshu bolo, what are the disadvantage of HTML? Sir, it cannot do any it cannot do any Any calculations. calculation, major, minor, any calculation. Very good. एक दूसरा. Second. It is not a programming language. नहीं ऐसा मत बोलो, प्रोग्रामिंग नहीं, ट्रूली बोलो, है ना? Yes. तो ऐसे तो है बट ट्रू सेंस में नहीं है. यस, गुड. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और अचिंत्य, सर उसमें इंटरैक्टिव वेब पेजेस कैनॉट बी डेवलप इन एचटीएमएल. अचिंत्य आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. Interactive web pages cannot be developed in Yes, you HTML. cannot make interactive web pages like login, username and password. Very good. और anyone? और इसमें हाइपरलिंक प्रोवाइड होती है. होती है, वो तो होती है, बट सर्वर की नहीं होती. Okay. Then it's not having any compiler, right? हाँ, yes sir. Compiler नहीं होता. So that is the another. You cannot display even date dynamically. Yes, sir. Yeah, these are the disadvantage. So let's see advantage क्या है. सर अगर डिसएडवांटेज पूछा तो कितना पॉइंट्स लिखने का रहता है? At least 4 or 5. ओके सर. है ना, 4 और 5 चाहिए ही चाहिए. और मेरे को कैसा चाहिए 4 और 5 जो लिटरली इंपॉर्टेंट है. कुछ भी लिख देंगे मजा नहीं है. लिटरली इंपॉर्टेंट 4 और 5. अभी मेरे लिए एडवांटेज आता है तो मेरे को दिखता है कि आई कैन मेक द. अच्छा HTML होता ही नहीं तो व्हाट हैपेंस इथेन. HTML नहीं होता तो आप क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते अगर है तो. If it's not there, then no websites. And no website, that means you cannot share it your page to the world. Yes, no? Yes, sir. है ना? You have a Microsoft document which you have written on your desktop and you have HTML page. What is the difference, Ethan? We can't share it with them. Yeah. अभी कोई मुझे बोलेगा सर मैं PDF फाइल बना के WhatsApp में सबको भेज सकता हूँ, लेकिन तेरे पास नंबर ही नहीं है तो क्या करेगा भाई? आई हैव अ वेबसाइट, मैंने बना दिया, सबको मैं दे सकता हूँ और सबको मेरा लैंडलाइन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर जैसा मेरा वेबसाइट का पेज का नाम बोल सकता हूँ मैं. ट्रू आइडेंटिटी. मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपका वसई ब्रांच किधर है, मैं उसको मेरा कॉन्टैक्ट अस का लिंक भेज देता हूँ सीधा. इट इज सो रिच बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो आपको मैप भी मिलेगा. ऑफ कोर्स इट इज नॉट डायनेमिक मैप. आप जो गूगल मैप करते हो वो नहीं है, स्टैटिक मैप है, लेकिन बहुत अच्छा मैप बनाया है हम लोगों ने. आई मीन अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द ट्रेन और वसई में वेस्ट में निकला तो मेरे क्लास में आने को कौन से रास्ते से जाने का उसका मैंने मैप ड्रॉ करके रखा है. मैं उसी को शेयर कर लेता हूँ स्टूडेंट को, ये ले भाई ये कॉन्टेक्ट अस. मतलब दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेबसाइट, है ना. यू नो मैनी एडवांटेजेस. मेरे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर मुझे प्रोजेक्ट का ब्लैक बुक कैसे बनाने का आई डोंट नो. आई सेड गो टू द वेबसाइट एंड गो अंडर द सेक्शन कॉल्ड प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के अंदर वी हैव केप्ट द सैंपल फॉर ब्लैक बुक. गो एंड डाउनलोड, खत्म. So that's the advantage of website, everyone. Right? Okay. Yes sir. And then, is it an easy programming language? Yes, no. Medium. है ना? So it's much easier है, very easier. I mean, you people said कि हमने 8th 9th में स्कूल में किया था. Yes, sir. So that much easy. And can you think of to learn Python programming language in the 7th 8th? No, you cannot. Python requires a object oriented programming concept. Once you learn C++ of 12th standard, 12th के वेकेशन में आप पाइथन कर सकते हो. मैंने एक ग्रुप को मैं फिजिकली करा रहा हूँ इन चिकूवाड़ी.
तो वो लोग को मैंने प्रॉमिस किया है हम लोग 12th के वेकेशंस में पाइथन सीखेंगे. सो आई डेफिनेटली विल इनवाइट यू पीपल ऑल्सो. 1.5 month to 2 months में सीधा प्रोजेक्ट लेवल का करेंगे. एक कोई पाइथन प्रोग्रामिंग यू Yes. विल लर्न एट पार कॉल की भी अरे वाओ दिस इज व्हाट यू कैन डेवलप पाइथन से समथिंग यू नो. Yes. और उसके लिए Yes, आपको sir. खाली C++ का क्लास एंड ऑब्जेक्ट आना चाहिए ऐसा तो वो कर सकते हैं हम लोग. तो HTML इज वेरी सिंपल. ओके. Can I say HTML will work on any browser or any operating system है ना. like some of the our four students में से किसी के पास एप्पल कंपनी का लैपटॉप है iOS है उसके अंदर तो वो भी रन तो कर सकता है एटलीस्ट दूसरा सॉफ्टवेयर से. Yes. नॉट Yes. क्रोम लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर से कर सकता है. दैट वे. In HTML, can I go to the one page to another page? Yes, that's called hyperlink. Yes. Yes. ये हमारे सिलेबस में हम सीखेंगे. In my first page, I have a 5 page का लिंक. जो भी लिंक को क्लिक किया that page नंबर पे वो जाएगा. Great. So can I open like the same website like on the phone ka browser? Yes, बिल्कुल. Okay. Now उसमें what happens? The websites, if you have not made compatible, I repeat, if you have not made compatible to the devices, आप मोबाइल में ओपन तो कर पाओगे लेकिन उसकी डिजाइन का पूरा बैंड बच गया होगा क्योंकि वो कौन सी डिजाइन से दिखाएगा लैपटॉप और डेस्कटॉप Yes, की sir. डिजाइन से. तो दिस इज व्हाट इवन हैपेंड. मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ. समवेयर 3 years बैक वन ऑफ माय स्टूडेंट ही केम एंड ही सेड कि सर आपका वेबसाइट तो मोबाइल में कैसा दिखता है. आई सेड कैसा दिखता है. फिर मुझे याद आया कि दिस जनरेशन आर नाउ नॉट यूजिंग द वेबसाइट इन द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप. दे यूज इट इन मोबाइल. सो आई आस्क्ड माय वेबसाइट डिजाइनर कि भाई मेरे को तू कंपैटिबल करके दे. सो नाउ आवर वेबसाइट इज कंपैटिबल. सो इफ यू Yes. ओपन इट इन अ वेब मोबाइल इट विल बी कंप्लीटली मोबाइल का जैसा बन जाएगा. एंड यू हैव अ मेन्यूज अकॉर्डिंगली वर्टिकल मेन्यूज आ जाएंगे. एंड इफ Yes. यू ओपन इट इन अ टैब वो कंप्लीटली टैब इज 8 इंच टू 11 इंच का होता है तो उसके हिसाब से आएगा. एंड इफ इट इज लैपटॉप और डेस्कटॉप इट्स 15 इंच के हिसाब से आएगा. दैट वे. सो यू हैव टू मेक इट. उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है बट बाय डिफॉल्ट दिखेगा. एवरीथिंग इज दिखेगा. ऑफ कोर्स एवरीवेयर दिखेगा. खाली उसका डिजाइन का स्कैटर्ड हो गया होगा. दैट्स इट. तो वो Yes. भी एक एडवांटेज है. यू कैन ओपन इन एनी डिवाइस है ना. So this is what it is. You know, if I'm making my page called Word में बनाया और HTML में बनाया, can I have HTML के अंदर images? Of course, Word में भी images हो सकता है, लेकिन यहाँ पे images looks very nice, organized. Yes. Image. अच्छा, is HTML support audio and video? Everyone? Yes. हाँ. मतलब मेरा वेबसाइट आप ओपन करोगे बैकग्राउंड में मैंने कैनी जी का म्यूजिक रखा है. वाओ. आप लिफ्ट में जाते हो और कैनी जी का म्यूजिक दिखता Yes. है एलिवेटर में. सो दैट काइंड ऑफ कोई बॉलीवुड का कोई मूवी नया लॉन्च हो रहा है तो वो लोग मूवी के लिए भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली ऐसा क्लासिक कुछ बनाते हैं समथिंग फंकी टाइप. तो Yes. व्हेन द यू ओपन इट सम सी द ट्रेलर स्टार्ट हो जाएगा वीडियो. दैट काइंड ऑफ. सो इट्स अ मल्टीमीडिया हो गया. कैन आई डू दैट मल्टीमीडिया इन माय वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? No. नॉट ट्रूली. ऑडियो तो आएगा ही नहीं खाली इमेज आएगा. सो ऑडियो एंड वीडियो इज सपोर्टेड इन HTML. यहां लिखा है नहीं लिखा है आप साइड में पेंसिल से लिख के रख दो. इट सपोर्ट्स ऑडियो वीडियो. मेक्स माय पेज ट्रूली मल्टीमीडिया. Yes. है ना. See, there is no cost for using the HTML. Now you say, sir, what do you mean by cost? So there is a one software called Visual Developer.
मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ विजुअल डेवलपर, उसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है. पेड वर्जन इज ऑफ 40,000 रुपीज पर सिस्टम. Wow. So हाँ, तो HTML is free. You don't require license. You know Tally is not a free. I hope you heard is Tally is Indian software Yes, sir. and you require Yes, sir. license. वो बात अलग है कि आपका अकाउंटेंट मेरा अकाउंटेंट वो पायरेटेड वर्जन यूज करता होगा, जैसे आप और मैं टेलीग्राम में सारे मूवी देखते हैं, यू नो. बट देन हाँ क्रैक वर्जन की बात कर रहे हैं ना? हाँ क्रैक वर्जन की बात कर रहे हैं ना? हाँ. सो बट ऐसा नहीं है एक्चुअली. रियल टाइम में तो टैली के लिए यू रिक्वायर्ड द लाइसेंस. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट दीज डेज आर रियली वरीड, दे डोंट यूज द पायरेटेड वर्जन बिकॉज बहुत सारे रेड भी हो रहे हैं नाउ, दे आर चेकिंग. Yes, sir. So you need to purchase the license which cost is around 11 to 15,000 का कुछ cost है टैली का. तो by that comparison HTML is completely no cost, no license to purchase. Yeah, okay. So हम लोगों ने एक एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा. एंड देन फीचर्स क्या होता है, तो जो हमने अभी किया वही फीचर्स है. लाइक इट सपोर्ट्स ऑडियो, इट सपोर्ट्स वीडियो, it have a color, it have a animated GIF image, you can have a tabular format data, Yes, sir. है ना. So this is all are the features. Sir, BMP मतलब हाँ बोलो. BMP मतलब नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है. या तो बराबर बोलो जरा प्लीज, कम अगेन. sir, BMP. BMP क्या है? हाँ, BMP is another file which has a picture quality. तो GIF जैसा रहता है, ऐसा BMP का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ. ये देखो BMP फुल फॉर्म बिट मैप पिक्चर होगा शायद. बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप पिक्चर, एवरीवन राइट. बिट मैप पिक्चर होता है, इट्स BMP फाइल. जैसे PNG फाइल भी रहता है. ये सारे फॉर्मेट्स है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, राइट. तो इट्स अ फाइल विच हैज एन इमेज फॉर्मेट. इमेज होता है उसमें बेसिकली, Okay. है ना. All right, any doubt any of you have, you can ask me right now. So when you put images,